So, hello, welcome back, and good morning, dear students. I welcome you all in Sri Ram Academy as we are growing through. Nowadays, we are going through online classes. So, you know all that I have already completed our half of the explanation of the poem, which is already completed. Half of the explanation of this poem, if has been completed, and now we are going to explain our next which is part second of poem if. So before starting the lesson, let me tell you one thing. You all should have pen, pencil and your book along with you so that you can be easily understood by the explanation. As you all know कि हमारे इंग्लिश जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एक पैसेज सॉल्विंग यानी एक्सट्रैक्ट सॉल्विंग मिलती है. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, पोएम को अभी पढ़ लेंगे, तो एट द लास्ट एट द एंड यू नीड नॉट टू मग अप द थिंग्स. मतलब चीज़ों को आपको रटना नहीं पड़ेगा. सो I instruct you all to have pencil and book along with you whenever you are getting explanation of, whenever you are taking lecture of English explanation. Okay? So सबसे पहले पेन बुक ये साथ में रख लें तो ये जो एग्ज़ाम के लिए है वो भी बहुत हेल्पफुल होगा. So I have already taught you the first and second paragraph, which is if you can keep your head when all about you or losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, not talk too wise, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those who impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves, by make a trap for fools, or watching the things you gave for your life to broken and stop, build them up with worn out tools. So this is the first paragraph. and second paragraph ये है वो paragraph first and second जो हम लोगों ने discuss किया था. I have explained you in a previous lecture. Now we are going to focus on these two paragraphs, which is last two paragraphs and last two paragraphs. Yes, now we have to study last two paragraphs. So here is the slide where you are given only two paragraphs. This is the paragraph which I have to read and which we have to read. So if you can make one heap. इसकी पहले बैकग्राउंड स्टोरी बैकग्राउंड क्या रही है कल कि स्टोरी बैकग्राउंड में एक चीज़ जो समझ में आई है वो ये थी कि अगर आपको ये स्टोरी हमारा कहता है, ये पोएम कहता है कि अगर आपको वर्ल्ड मास्टर बनना है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड बनना है, व्हाट वी हैव टू डू, तब हमें क्या करना चाहिए, राइट? तो उसमें बताया गया काफ़ी फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है. पोएट ने ये बताया कि हाँ, हमें अगर वेट करना आता है, हमें अपने ड्रीम करना आता है कि हमें ड्रीम करना है लेकिन उन सपनों को अपना मास्टर नहीं बनाना है, हमें जीत और हार को एक सिमिलर तरीके से ट्रीट करना आता है, तो हम क्या कहलाते हैं, मास्टर. तो हम बस अभी इतना ही था कल तक के लेक्चर में कि तो के आगे और भी कुछ कंडीशंस हैं जो हम पढ़ेंगे. उसके बाद एंड में हम समझेंगे कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्या होगा, राइट? तो with the very first line here, yes, I'm also marking the statement so that you can be easily understood. Yes, so yes, the very first line it is written this one. If you can make one heap of all your winnings, मतलब अगर आप, heap का मतलब होता है collection. If you can make a collection of your winnings, अगर आप अपनी winnings जो जीत है उसका collection बना लेते हैं, यानी बहुत सारा collection बना लेते हैं, और ये if you can make one heap of all your winnings, अगर आप collection बनाएं अपनी winnings का, और क्या हो, if you can make your one heap of all your winnings and risk it on one turn to pitch and toss and lose and start again at your beginnings. Okay, now what happened कि अगर आप अपनी जीतों का कलेक्शन बनाएं और
उसको जो है, भले ही आपके पास बहुत सारी जीत हैं, यानी डजंट मैटर्स कि आपने कितनी सारी चीज़ें करी है ज़िंदगी में और कितने सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये गट्स हैं कि आपको फिर से शुरुआत से सारी चीज़ें शुरू करनी है, तो एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत जीत के कलेक्शन बनाए और फिर अचानक क्या हुआ कि वी गेट ऑन अ लॉस। ओके, तो जब हम कभी भी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाएं, तो हमारे अंदर अगर गट्स हैं कि हाँ हम अपने कर्मों से उसको दोबारा कर सकते हैं, वी कैन अगेन डू इट, तो अब क्या होगा, एंड नेवर एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, यानी कि शुरुआत से हम फिर से स्टार्ट करके उस चीज़ को आगे ले जाएंगे, फिर से वही काम कर लेंगे। एंड नेवर ब्रीद एंड वर्ड अबाउट यू लॉस, और कभी भी आप एक वर्ड ना बोलें उस बारे में कि आपने क्या खोया है, इस बारे में। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, अगर आप अपने हार्ट को, अपने दिल को, तब तक इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतने गट्स हैं, इफ़ यू हैव दिस मच गट्स टू फोर्स योर हार्ट, अपने हार्ट को फोर्स कर सकें आप, तब कब तक, जब तक कि नर्व्स, भले ही आपकी नर्व्स में यानी नस नस में जो है वो ताकत ना बचे, बिल्कुल आप असहाय हो, बिल्कुल हेल्दी ना हो उतने ज़्यादा, बट देन ऑल्सो इफ़ यू हैव गट्स टू फोर्स योर हार्ट, लेकिन उस समय पर भी अगर आप अपने हार्ट को फोर्स कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, किसके लिए, दैट यू हैव टू डू दिस वेदर यू आर नॉट फाइन, भले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है बट यू हैव टू डू दिस, तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तब, टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जब आपका समय हो तब आप वो काम करें, और भले ही वो सांसें चली जाएं, जाने वाली हों, मरने वाले हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर गट्स हैं कि आपको ये करना है। एक सोल्जर को देखा है ना, व्हाट डू दे डू, मोस्टली सोल्जर्स क्यों फेमस है, उनकी स्टोरीज़ क्यों बनाई जाती हैं कि उन्होंने मरते दम तक, लड़ते दम तक भी गोली खाई, ऐसा बोलते हैं ना, राइट। तो उन्होंने बंदूक जो है सीने पे उनके बंदूक चली, तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि अगर आप अपने फोर्स कर सकते हैं, ये देखिए इस लाइन में, 5th लाइन में, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न अलोंग दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच से देम होल्ड ऑन। ओके, सो नाउ व्हाट इज सेइंग इन दीज लाइन्स कि आपके अंदर अगर ये गट्स हैं कि हाँ आपकी सांसें भी जाने वाली हो, तभी भी यू हैव गट्स टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव गट्स जब आपका हार्ट आपको पुश करे आपके काम की तरफ। इसी तरीके से ऐसे वक्त पे, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, और ऐसे समय पर जब आप में कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट द विल, कि क्या चीज़ बस बची है, बस एक चाहत बची है, वो विल बची है कि हाँ आपको ये करना है, और वो विल जो है, वो चाहत आपसे बार बार क्या कह रही है, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब कि नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम इस चीज़ को, इस काम में होल्ड ऑन रखो, है ना, यानी रुक जाओ, तुम्हें ये काम करना ही है। तो तब क्या होगा, तब होगा जब आपकी विनिंग्स का कलेक्शन आप ना बनाएं, जब आप लॉस होने के बाद भी आगे जाने का हिम्मत रखते हो, और इसी तरीके से जब आपको अपने जो काम है उसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और वो जो जज्बा आपके अंदर हो, भले ही आपकी सांसें जाने वाली हो फिर भी आपको करने का जज्बा हो, तो ऐसे टाइम पर आप कहलाएंगे क्या, देखो नेक्स्ट पैरा में, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. Okay, now what happened in this line, have a look on this line, ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है कि यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, आप जो है क्राउड से टॉक कर सकते हैं, यानी कि आप भीड़ में बात कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपके अंदर ये हिम्मत है कि आप अपने वर्च्यूज़, मतलब जो भी आपका बिहेवियर है, जो आपके प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, भले ही आप भीड़ में कैसे भी हो, बहुत से लोग मिलते हैं, कहते हैं ना, वो एक बात हमने सुनी है कि चंदन में जो है वो सांप लिपटा होता है, लेकिन फिर भी जो चंदन है वो चंदन ही रहता है ना। तो भले ही आप क्राउड से मिलें, बट देन ऑल्सो इफ़ यू हैव गट्स टू मीट अप विद द क्राउड, बट
you are not changing yourself from inside, you are not changing your qualities. तो जब आपके अपने बिहेवियर, क्वालिटीज़, परफेक्शन को आप चेंज ना करें, भले ही आप जैसे तरह तरह के लोगों के साथ रहें ऐसे समय पर, और भले ही आप किंग्स के साथ चल रहे हो, यू आर वॉकिंग अप विद किंग्स, तुम राजा महाराजाओं के साथ चल रहे हो, लेकिन फिर भी बहुत डाउन टू अर्थ हो, यानी फिर भी आपका जो कॉमन टच है वो आपका हो. इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना आपके फोज, ये लिखा हुआ है फोज, यस, फोज का मतलब होता है दुश्मन, है ना. तो इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, जब आपको आपके दुश्मन भी हर्ट ना कर सकें और ना आपके दोस्त आपको हर्ट कर सकें, मतलब जब आपके अंदर किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, जब उम्मीद नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, हम क्या करते हैं, अपने एक दिमाग में बना के रखते हैं, क्या चीज़ बना के रखते हैं, एक हमने स्टेटमेंट दिमाग में रखा है कि अगर ये हमारा फ्रेंड है तो ये हमको अपनी वो नई वाली पेंसिल दे देगा, है ना ऐसा, ठीक है. तो अगर वो हमको वो नई वाली पेंसिल दे देगा तब तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन अगर उसने वो नई पेंसिल जो ली है वो नहीं देगा तो हम थोड़ा हर्ट हो जाएंगे. तो हमको क्या करना है, बेसिकली उम्मीद, हमें एक्सपेक्टेशन किससे रखनी है, सिर्फ खुद से. इफ़ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर सेल्फ, अगर हम खुद से एक्सपेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम काम भी करना चाहेंगे, ठीक है. तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग, जब आपके दुश्मन भी आपको हर्ट ना कर सकें और जब आपके दोस्त भी आपको हर्ट ना कर सकें, ऐसे टाइम पर इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग माइन्यूट. ओके, जब आपकी गिनती जो है वो सब लोगों के साथ में हो, इन द सेंस कि आप, जब आपके द्वारा बाकियों को जाना जाए, तो ऐसे समय पर, और जब ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको प्रायोरिटी मिले, जब आप दूसरों को भी स्पेस दें, यानी जब आप अपना काम तो अच्छा कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके साथ वाले भी उस चीज़ को सीखें, व्हेन दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस विद इट. ओके, एट दैट टाइम, उस समय पर, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग माइन्यूट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस टाइम. ओके, ऐसे टाइम पर जब आप डिस्टेंस, ओके, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल विच इज़ रिटन हियर. ये लास्ट की 4 लाइन्स जो हैं ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. कैसे, देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब आपके पास टाइम हो, ऐसे समय पर, देखिए, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग माइन्यूट्स हियर, ठीक है. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग माइन्यूट्स का मतलब हुआ कि अगर आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब आप किसी को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं, और वो भी अनफॉरगिविंग मिनट्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी आपके अंदर क्षमता है कि आप किसी को 60 सेकेंड में माफ़ कर सकते हैं, बजाय कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रन करना पड़े आपको. मतलब कि अगर आपसे किसी ने माफ़ी मांगी तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं दैट आई हैव टू थिंक अबाउट इट एंड आई विल टेल अबाउट यू नेक्स्ट डे, तो टेल अबाउट इट यू नेक्स्ट डे, मतलब कि आपको हम बाद में बताएंगे कि मैंने तुम्हें माफ़ किया या नहीं. तो अगर यू हैव दिस पोलाइटनेस, अगर आपके अंदर ये विनम्रता है कि आप सामने वाले को 60 सेकेंड में माफ़ कर सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, ये जो कंक्लूज़न है वो पूरा लिखा हुआ है लास्ट की 2 लाइन्स में, यहाँ पे और यहाँ पे. क्या है कंक्लूज़न, कि विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. तो ये चीज़ें ऊपर से पहले नीचे तक क्या कि अगर आप कलेक्शन बना रहे हैं, अगर आप जीत के भी हारना जानते हैं, उसके साथ साथ अगर आपकी नस नस में काम को लेकर के इतना ज़्यादा काम, इन द सेंस व्हाट, कि अगर आप सोल्जर हैं तो आपका काम क्या है, ड्यूटी करना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका काम क्या है, पढ़ना. तो आपको ये चीज़ है अंदर कि हाँ, ये काम करने के लिए मैं अपने हार्ट को बोलूँ तो वो मुझे पुश करे, भले ही मैं हेल्दी नहीं हूँ, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. तो ऐसे कर करके अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप उसको फिर भी दूसरों पर हावी नहीं होने देना चाहते, लोगों के साथ आप रहते हैं लेकिन उनके जैसे नहीं होते, जब किंग्स के साथ रह रहे हैं, बड़े ही महाराजाओं के साथ, यू आर हैविंग कंपनी विद सो मेनी किंग्स, बट यू डू नॉट लूज योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को नहीं खो सकते, इन द सेंस कि आपका जो कॉमन टच है वो डाउन टू अर्थ नेचर है, वो अगर नहीं बदलता, भले ही आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहें, और जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते, जब आपके दोस्त दुश्मन आपको
हर्ट नहीं कर सकते। ऐसे टाइम पर अगर आप फॉरगिविंग यानी कि माफ़ करने की क्षमता रखते हैं, बजाय कि 1 घंटे लेने या काफ़ी ज़्यादा आपके दिल को रन नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको माफ़ करना है और नॉट, तो आप 60 सेकेंड के अंदर अगर किसी को माफ़ करने की हिम्मत रखते हैं, तो ऐसे टाइम पर योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। तो क्या कह रहे हैं राइटर कि अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो योर्स इज़ द अर्थ, तो ये अर्थ जो है, ये पृथ्वी, ये दुनिया आपकी है, एंड एवरीथिंग, और सब कुछ यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब आपके हैं, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और तभी आप एक इंसान कहला रहे हैं, और तभी आप मास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे, और तभी आप एक इंसान हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो अभी आपको इंसान बनने के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट, एंड आफ्टर वर्किंग अ लॉट, after giving so many time to furnish yourself, after finding out that क्या क्या चीज़ें आपके दिल में नहीं हैं अभी, तो after giving so much time to improve yourself, you will get the entire conclusion कि अगर आपको वो entire conclusion चाहिए, अगर you wanted to be a man, you wanted to be a master of world, man क्या है master of world, because हम भी जानते हैं कि जो वर्ड तो बन गया है, लेकिन जो चीज़ें बनी हैं, जो प्रोग्रेस हुई है, वो इंसान ने की है। तो इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस योर सेल्फ, फर्स्ट यू मीट योर सेल्फ, इंसान बनो, और इंसान बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ऊपर पोयम ने रुडयार्ड किपलिंग ने बताई है। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मुश्किल है, दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग कर सकते हैं, ऑफकोर्स वी कैन डू इट। सो एट द एंड ऑफ द लेसन आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि मेरी जो PDF है, आई विल प्रोवाइड यू PDF, एंड व्हाट आई एक्सपेक्ट इज़ दैट एक बार आप लोग ये पोयम को अपने बुक में देखें, टेक्स्ट बुक में देखें, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, बिकॉज ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, देखते रहोगे लेक्चर के टाइम पे, तो यू विल बी इट विल बी सो ईजी टू यू टू सॉल्व द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स पोयम सॉल्विंग में ही जाती है स्टूडेंट्स को। So hope you guys are studying hard and hope you guys are enjoyed this session very well. Good luck students, and study hard.